Hello everyone. I am Harsh Lohana, your subject mentor for English subject. I'm excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured learning, live lectures, mock tests, and performance-based rewards. So let's continue to our basic to advanced series. Now we are here into advanced form of series जहाँ पर हम सारे advanced topics for English grammar we are collecting, right? अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग टेंसेस विद आवर टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, जैसे कि डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, imperative and exclamatory. So how we will integrate this sentence types with tenses, be it present, past, future. Okay, so all the formulas with examples will be integrated. Let's start. First one is the introduction. So tenses shows the time of an action. We are learning it from previous two lectures के tenses हमें time of action दिखाता है. There are various sentence types such as declarative, interrogative, imperative and exclamatory that I mentioned before. Formula we have subject plus verb plus object. Changes with tense and type. हर बार टेंस और टाइप तो चेंज होगा, बट जो बेसिक रहेगा, जो बेस रहेगा वो यही रहेगा कि वी विल हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटीग्रेशन हेल्प्स इन एक्यूरेट ग्रामर यूसेज. आप ग्रामर का एक्यूरेट यूसेज तभी कर पाओगे जब आप उसको सही तरीके से इंटीग्रेट कर पाओगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट सिंपल. दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट. सो फॉर declarative we have formula of subject plus v1 plus object. Because declarative sentence क्या है, एक simple है कि we declare something, right? So she reads daily. That is the example of declarative. Interrogative में what we have to do, we have to ask question, right? We have to ask something. So do slash does plus subject plus v1 plus object. So does she read daily, right? Does she read daily? Why we are using does? So does with the singular and do with the plural. Does she read daily? Okay, क्या वो रोज पढ़ती है? Imperative में we will have subject plus v1 plus object. I'm sorry, here we are forgetting with the formula error here. Here we do not have just v1 plus object. We will have a advice here or a suggestion here that you should read daily, right? आपको रोज पढ़ना चाहिए. Then comes exclamatory, जहाँ पर हम what या half के साथ कोई भी adjective adverb plus subject plus v1 लगाएंगे. ओके, एक्सक्लेमेटरी का आपने देख लिया. वॉट या हाउ आएगा स्टार्टिंग में, फिर आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट आपका आएगा एंड में और v1 उसके भी बाद में. ओके, देन वी आर गोइंग विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी हैव डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी अगेन. सो डिक्लेरेटिव में वी हैव सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? कंटिन्यूअस है तो ing तो आएगा ही. इन टर्म्स ऑफ इंटरोगेटिव इज-एम-आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, एल्स इज सेम. इम्पेरेटिव में बी प्लस v1 प्लस ing आ जाएगा एंड एक्सक्लेमेटरी में वॉट स्लैश हाफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज और आर प्लस v1 प्लस ing हो जाएगा, राइट? इसमें मैंने दो ही फॉर्म के वो दिए हुए हैं, दो ही सेंटेंस टाइप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. बाकी के दो को आपको खुद फॉर्मुलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. एल्स हमारे नोट्स में तो वो प्रोवाइडेड हैं ही, राइट? सो डिक्लेरेटिव का जैसे बनता है शी इज सिंगिंग नाउ. इंटरोगेटिव का बनता है इज शी सिंगिंग नाउ, राइट? एक्सक्लेमेटरी का बनेगा what she is singing, what she is singing, yeah, how she is singing, right? You are exclaiming, you are expressing your emotions. How? So how good he is singing, she is singing, right? Chalo. Then comes past simple and past continuous. So past that means verb का second form यूज होगा डिक्लेरेटिव में as simple, जो simple past का ही फॉर्मूला यूज होता है, subject plus v2 plus object.
इंटरोगेटिव में डिड आगे आ जाता है, देन एल्स सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, then a question mark, it is a mandatory thing. Imperative में we will have V1 plus object. Exclamatory में we will have what slash how. In exclamatory we will always start with what or how, right? Plus subject plus V2. Example, he played football yesterday. Did he played football yesterday, right? Then comes past continuous. Past continuous में we'll have a declarative में subject plus was were plus V1 plus ing plus object. इसमें आपको जो आपने फर्स्ट में जो भी सीखा वही आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। जो रॉ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है फॉर पास्ट कंटिन्यूअस वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए भी फॉर्मूला है, बिकॉज डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज जनरली यूज टू स्टेट समथिंग, आपको कुछ बताता है, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में वॉज वर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1G एंड ऑल थिंग सेम विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। एम्परेटिव में बी प्लस V1 प्लस ing, देन एक्सक्लेमेटरी में हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ing, right? You have to just go through with the formula that how we are using it. Then आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को हर एक फॉर्मूला से आप सेंटेंसेस बनाइए, राइट? सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। पहले पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस लिखिए, फिर उसको ही इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करिए, राइट? Then comes past perfect. So past perfect में we will have subject plus had plus V3 plus object. In interrogative we will have had plus subject plus V3 plus object. Had आगे आ जाएगा. Imperative में we will have plus V3 plus object. Exclamatory में we will have how plus subject plus had plus V3. In example we have she had finished before I arrived. उसने काम पूरा कर लिया था उस जब तक मैं पहुंचा। देन कम्स सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर फॉर्मूलाज दिख ही रहे हैं। डिक्लेरेटिव का तो सेम, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल शेल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क कॉमन। इम्परेटिव में विल शेल वापस आगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सक्लेमेटरी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सुन के आपको वॉट या हाउ सबसे पहले ही लगा लेना है। वॉट हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1। फिर जो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस सुनते ही आपको ing लगा देना है। डिक्लेरेटिव में तो हमारा बेस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल हैव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि विल खाली आगे आ जाएगा और बी सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। इम्परेटिव में विल हैव बी प्लस V1 प्लस ing एंड एक्सक्लेमेटरी में विल हैव हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ing, राइट? वो जो एक्सक्लेमेटरी है उसमें डिक्लेरेटिव पूरा का पूरा है, बस ऑब्जेक्ट आपका निकल जाएगा एंड हाउ पहले आ जाएगा, लाइक हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ing। देन कम्स फ्यूचर परफेक्ट। सो इन फ्यूचर परफेक्ट विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड डिक्लेरेटिव, फिर विल अपना आगे आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट प्लस हैव, जैसे हमने इसमें किया था विल बी वाले में, विल आगे आ गया था और बी पीछे। विल हैव में विल आगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देन कम्स इम्पेरेटिव, सो विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सक्लेमेटरी में वी हैव हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 एंड देन वी हैव अ एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके सारे एक डिटेल्ड एग्जाम्पल्स मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, सो विद दैट यू कैन गो to our app and see the notes, right? प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी हुई है। शी राइट्स पोएम, जो कि प्रेजेंट सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट में। नाउ वी हैव टू मेक इट इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। डज शी राइट्स पोएम, राइट? इंटरोगेटिव के लिए एक्सक्लेमेटरी आप बनाएंगे। देन दे वर ईटिंग लंच, पास्ट कंटिन्यूअस, मेक इट इम्परेटिव आपको बनाना है। आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फ्यूचर सिंपल है तो इसको इंटरोगेटिव बनाना है। आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सिंपल फ्यूचर, उसको अगर मेरे को इंटरोगेटिव बनाना है तो विल आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट, विल आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? अभी आपको एक चैलेंज भी मैं दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ही हैड वॉन द मैच, इसको आपको चारों टाइप्स में चेंज करके दिखाना है। सबसे टफ पता है कौन सा है? डिक्लेरेटिव।
क्यों? क्योंकि वो तो ये पूरा का पूरा सेम ही आ जाएगा, राइट? क्योंकि डिक्लेरेटिव ये जो रॉ फॉर्म है उसी को फॉलो करता है। ओके, so thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. Bye bye.